Dear student, let's start with rest of question. Use test 1. So 5 questions already पहले वाले वीडियो में सॉल्व कर दिए थे. सॉरी 4 क्वेश्चंस पहले वाले वीडियो में सॉल्व कर दिए थे. Now of this video, in this video I am going to solve rest of questions. Rest of questions means let's question number. This is a Rajpal test quiz 1. Rajpal classes quiz test 1 UGC CSIR physics. Question number 1 solved in video 1. Question number 2 also solved. Question number 3 solved. Question number 4 solved in video 1. Now question number 5. So as you see here, this is the question number 5. Following is the K-map of Boolean function of 5 variable P, Q, R, S and X. The minimum sum of product. Sum of product means expression sum of products for the function P, Q, R, S and 1 is X. P, Q, R, S, 1 is X is equal to 1. Here X is equal to 0. So sum of product is a type of operation expression in which, for example, suppose if any function f of 3 variables ABC are the variables, can be represented in this form AB bar C plus AB and plus BC. So this is a SOP form, sum of product. So here is the product A, B bar C, AB and BC. You have 3 variables. So minimum and maximum, two types of expression are there. One is the minimum expression for SOP form and maximum expression for SOP form. Okay. So in SOP, we always consider 0 as a bar. If 0 is so A bar and 1 is considered simply A. So this is our consideration in case of SOP form. If POS form, product of sum form also there. Product means POS, sum of product, and one is the POS, product of sum. Product of sum means you have A plus B plus C and then into V plus C, suppose कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं यही हो, and then into A, suppose. So this is the product of sum, A plus C, suppose. So this is the product of sum form. Here you consider 0 as only A and 1 you consider A bar. So this is the concept of sum of product and product of sum. So here you have how many variables? K-map Boolean expression for the variable P, Q, R, S and X. इसका minimum sum of product determine करना है. Minimum sum of product हमें determine करना है. Minimum sum of product क्या होगा वो चीज़ हमने determine करनी है. तो इसके लिए
हम चलेंगे अपने सॉल्यूशन सीट पर, वहाँ हमने इसको देखना है। सॉल्यूशन सीट पर, solution sheet is, this is the solution sheet, so this is solution sheet. So here question number 4 already done. Question number 6. So whenever we are going to solve the SOP form, means minimum form of SOP, one is the maximum form, and one is the minimum form. When we are going to determine the minimum form, so using K-map, so we have to consider, हमने क्या करना है, 1 के ग्रुप बनाने हैं, सबसे बड़ा ग्रुप बनाना है पहले। ये K-map कितने वेरिएबल्स का है, 5 वेरिएबल्स का है। एक वेरिएबल इसमें ऑलरेडी अलग दिया हुआ है, बट 4 वेरिएबल्स का K-map बनाया हुआ है। ये एक दूसरा वेरिएबल है, तो ये 5 वेरिएबल का K-map है with x is equal to 0, with x is equal to 1। यहाँ पे PQRS में K-map बनाया हुआ है। K-map की ये फॉर्म होती है। इधर हम लिखते हैं 0 0 0 0 1 1 1 1 0, और ये जो हमारी लिखा होता है ग्रे कोड में लिखा होता है। एक्चुअल में 0 0 के बाद 0 1 आता है और फिर 1 0 आता है, फिर 1 1 आता है, बट ये ग्रे कोड में लिखते हैं हम। ग्रे कोड में हम 1 1 पहले लिख लेते हैं। इस डायरेक्शन में भी हमने ये लिख लिया 0 0 0 1 1 1 1 0। 0 0 का मतलब क्या है? 0 0 का मतलब है P बार Q बार। 0 1 का मतलब है P बार Q। 1 1 का मतलब है PQ, ये वाला है ना। तो ये हमारी MSB है, ये MSB होती है। आप इधर भी MSB ले सकते हो, उधर LSB ले सकते हो, इधर LSB है ना। तो ये हमारी MSB है, ये ऐसे हमने करना, मूव करना है। तो ये हमारा MSB है। जब भी हम इसको लिखाएंगे जैसे 0 0 0, ये P बार Q बार है ना। पहले बॉक्स में क्या आएगा? P बार Q बार R बार S बार, पहले बॉक्स में ये आएगा। इस बॉक्स में ये आएगा P बार Q बार R बार S बार, बिकॉज यहाँ पर आएगा 0 0 0 0। तो ये सब 0 है, ये सब 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, और ये भी 0 है। इस तरह से हम ये कर लेते हैं। तो ये वैल्यू आएगी इसकी 0 है ना। यहाँ पे अगर डेसिमल नंबर लिखे तो यहाँ पे 0 आएगा। फिर डेसिमल नंबर यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। डेसिमल नंबर कैसे लिखे जाते हैं, किसी को नंबरिंग कैसे दी जाती है, डेसिमल नंबरिंग कैसे दी जाती है, K-map कोडिंग का मैंने वीडियो डाला हुआ है गूगल क्लासरूम में, और उस गूगल क्लासरूम में आप देख सकते हो जाके K-map कोडिंग कैसे करते हैं। बाइनरी कोडिंग, डेसिमल कोडिंग है ना, SOP कोडिंग, POS कोडिंग, सारे डाले हुए हैं। वहाँ से आप K-map को समझ सकते हो अच्छी तरह से। यहाँ पर हमारी ये प्रॉब्लम नहीं है, हमने कोडिंग नहीं करनी है, ऑलरेडी कोडिंग इसमें दी हुई है। और इसमें 1 भी दिए हुए हैं, कहाँ कहाँ पर 1 है, ये 1 दिए हुए हैं। हमने ये ट्राई करना होता है कि सबसे बड़ा ग्रुप बनाना होता है। ग्रुप कैसे बनाते हैं? हम बंस को टुगेदर करते हैं, बंस को कलेक्ट करते हैं टुगेदर। तो ये वाला जो ग्रुप बनेगा, ये एक ग्रुप बन जाएगा। 8 का ग्रुप इसमें 16 सेल्स हैं इसमें, 4 वेरिएबल्स के में 16 सेल्स होते हैं। तो 16 सेल्स में 16 का ग्रुप तो बनेगा नहीं, कहीं 16 तो बने है नहीं हमारे पास। 8 का ग्रुप बन सकता है, 8 का ग्रुप भी नहीं बन सकता। सबसे पहले बड़े ग्रुप की तरफ जो जाते हैं, फिर उससे छोटे ग्रुप की तरफ जाते हैं, फिर उससे और छोटा ग्रुप बनाते हैं। 8 के बाद 4 का ग्रुप, 4 का ग्रुप ऐसे तो बनेगा नहीं, सिमेट्रिक होने की वजह से ये 4 का ग्रुप बन जाएगा। ये और ये अगर इसको सेंटर से फोल्ड करके इसके ऊपर लाएंगे तो ये बिल्कुल ओवरलैप कर जाएंगे। ये 1 और ये 1, इन दोनों 1s के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे, तो ये इनका ग्रुप बन जाएगा। यहाँ से फोल्ड भी कर सकते हैं इसको। तो ये फोल्डिंग वाला ग्रुप होता है, ये फोल्डिंग का ग्रुप हो गया। इसका सिमेट्रिक ग्रुप है, ये यहाँ से सिमेट्रिक हो गया, ये ग्रुप बन गया। अब उसके बाद दूसरे वाले में भी ऐसे सेम ही बनेगा। इधर तो फोल्डिंग नहीं कर सकते आप, यहाँ से फोल्डिंग कर सकते हो। ये इसका सेंटर है, इसको फोल्ड करके ऊपर डालो तो ये यहाँ पे मैच कर जाएगा, तो ये ग्रुप बन जाएगा। तो ये हमारे ग्रुप बन गए, ये ग्रुप बन गया, ये ग्रुप। यही काम करना होता है जब हमने मिनिमाइज करना होता है तो सबसे बड़ा ग्रुप बनाना होता है, और जब मैक्सिमाइज करना होता है तो एक एक का ग्रुप बनाते हैं।
अगर इसको मिनिमाइज मैक्सिमाइज करने के लिए पूछा गया होता तो हम इसका अलग ग्रुप बना लेते, इसको सर्कल कर देते, इस वन को सर्कल कर लेते, इसको वन को सर्कल कर लेते, इस वन को सर्कल कर लेते, तो इसकी मैक्सिमम फॉर्म मिल जाती। अभी हमें मिनिमम फॉर्म चाहिए। तो जैसे ये ग्रुप बनाया तो आपने देखा कि ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप में इस वर्टिकल कॉलम में और इस वर्टिकल कॉलम में जो कॉमन चीज है वो हम लिख देते हैं। इस हॉरिजॉन्टल रो में, इस हॉरिजॉन्टल, ये ग्रुप दो वर्टिकल कॉलम को लाई कर रहा है और दो हॉरिजॉन्टल रो को लाई कर रहा है। तो जो हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम में कॉमन है उसको हम प्रोडक्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख देंगे। तो इस वाले वर्टिकल कॉलम में देखें 0 0 और इसमें देखें 1 1 0, इन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है ये ग्रुप। तो 1 0 0 0 और 1 0 में कॉमन क्या है, ये वाला टर्म जो 0 कॉमन है, और 0 टर्म है किसका, क्यू बार का टर्म है। मतलब ये जो लिखा हुआ है जहाँ पे 0 होता है वो बार होता है। तो पी क्यू बार तो यहाँ पे लिखा है और यहाँ पर क्या लिखा है, पी क्यू। तो इसका मतलब पी क्यू बार, सॉरी पी क्यू बार, तो इसका मतलब क्या है, क्यू बार इसमें कॉमन है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पी बार क्यू बार। 0 0 का मतलब क्या हुआ, पी बार क्यू बार, और 1 0 का क्या मतलब हुआ, 1 को हम कंसीडर करते हैं बिना बार के और 0 को कंसीडर करते हैं बार से, क्यू बार। इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, क्यू बार कॉमन आ गया, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब इन दोनों हॉरिजॉन्टल रोज में क्या कॉमन है, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है 0 1, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आर बार एस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आर एस को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि 1 पे आर एस ही आएगा। इन दोनों में ये एस कॉमन है तो एस यहाँ पे लिख दिया हमने। तो इसका रिजल्ट आ गया, इस ग्रुप का रिजल्ट आ गया क्यू बार एस। ओके, और एक डिजिट इसमें ये है, और हम जो चल रहे हैं, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है पी क्यू आर एस एक्स सबसे बाद में दिया हुआ है। तो इस वाले के मैप का रिजल्ट आया क्यू बार एस एक्स बार। एक टर्म ये बन गया, प्रोडक्ट है ये, प्रोडक्ट ऑफ सम इसके साथ बन जाएगा। इसमें इन दोनों में देखो, ये जो ग्रुप बनाया है यहाँ पर, ये जो ग्रुप बनाया है ये किस चीज को कितने कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाले कॉलम को, ये वाले कॉलम को, और ये वाले जो दो पाने हैं ये इस रो को और इस रो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर हम कॉलम में देखें, एमएसवी हमारी कॉलम है, तो कॉलम एमएसवी है, इसमें हमने क्या करना है, इसको देखना है। ये जो वैल्यू है 0 1 0 1 किसकी वैल्यू है, पी बार क्यू की वैल्यू है, पी बार क्यू लिखा हुआ है ये, और 1 1 किसकी वैल्यू है, पी क्यू की वैल्यू है। अब इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, इन दोनों टर्म में ये कॉमन है, ये वाला क्यू इसमें और ये वाला क्यू इसमें। तो ये क्यू कॉमन है, क्यू हमने यहाँ पे लिख दिया, ये एमएसवी लिख दी। और एलएसवी में क्या है, एलएसवी में हॉरिजॉन्टल रोज हैं, तो ये दो रोज को कंटेन करता है ये वाला ग्रुप, ये इस वाली रो को और इस वाली रो को। तो ये जो वैल्यू है ये पी आर एस की वैल्यू है, ये आर एस की वैल्यू है, और ये जो वैल्यू है किसकी वैल्यू, सॉरी आर बार एस बार की वैल्यू है, सॉरी आर बार एस बार की वैल्यू है, 0 0 आर बार एस बार होगा। और ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, आर और 0 का मतलब एस बार, तो ये ऐसे वैल्यू। इन दोनों में क्या कॉमन है, एस बार इज द कॉमन, एस बार इनमें कॉमन है, तो ये एस बार मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो इस ग्रुप का रिजल्ट आ गया क्यू एस बार। जब इसका क्यू एस बार रिजल्ट आ गया, इसका मतलब अब क्या लिखना है हमने, अब ये जो एक्स है इसको साथ में लिख देते हैं। तो इसका टोटल रिजल्ट ये आ गया, इस के मैप का रिजल्ट ये आ गया, एक्स एक ये अलग से दे रखा है, तो ये सबसे एलएसबी है, तो ये मैंने सबसे पहले लिख दिया, और इन दोनों को प्लस कर दें तो रिजल्ट आ जाएगा। तो ये वाला हमारा रिजल्ट हो गया क्यू बार एस एक्स बार प्लस क्यू एस बार एक्स। तो ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट है। फिर से हम देख लेते हैं वही जाके क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा ये था, क्वेश्चन ये था, ये वाला क्वेश्चन था। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। तो यहाँ पर अगर मैं बी पे क्लिक करता हूँ तो बी हमारा करेक्ट हो जाता है, बाकी किसी पे क्लिक करता हूँ कहीं नहीं करेक्ट होगा। तो बी हमारा करेक्ट है, इसमें आंसर ये बी हो गया। नाउ अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया गया है एक सर्किट दिया गया है, ये डिले टाइम का क्वेश्चन है। डिले टाइम का क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेते हैं। फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर द डिलेज ऑफ नॉर गेट्स, मल्टीप्लेक्सर्स,
and inverters. So this is the combinational circuit. This is the combinational circuit. This is the combinational circuit. Or here we having one NOR gate, as you see here, multiplexer, two multiplexers, and this one is a NOR gate, two NOR gate, two multiplexers, and two inverters you have. Okay, or the delay of each logic circuit, NOR gate delay 2 nanosecond, multiplexer delay 1.5 nanosecond, and NOT gate delay 1 nanosecond. Respectively, if the all inputs P, Q, R, S, T are applied at the same times, T is 0 here for all, 0 टाइम पर सेम टाइम पर ये अप्लाई कर दिए जाते हैं, तो द मैक्सिमम प्रोपोगेशन डिले इन नैनोसेकंड ऑफ द सर्किट इज, तो यहाँ पर आपको कितना डिले मिलेगा, यहाँ पर कितने टाइम के बाद ये पहुंचेंगे, P मैक्सिमम आपको निकालना है ना, वो आपने निकालना है। तो बेसिकली होता क्या है, जब ये इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम सबसे पहले हर एक में डिले निकालेंगे, P में कितना डिले हुआ, Q में कितना डिले हुआ, R में कितना डिले हुआ, S में कितना डिले हुआ, T में कितना डिले हुआ, जिसमें सबसे ज्यादा डिले होगा वही होगा। बिकॉज जैसे सपोज करो यहाँ से P इनपुट चलेगा और P इनपुट जाने के बाद यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आने के बाद इसके ऊपर जाएगा। तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अब हम अपनी वर्किंग सीट पर चल रहे हैं जहाँ पर हमने सॉल्व करना है। तो जैसे अब यहाँ पर आएगा तो क्या होगा, इसका डिले कितना है, इसका डिले है और गेट से पास होगा और फिर यहाँ आएगा और गेट से पास होने के बाद 2 नैनोसेकंड यहाँ पे डिले हो जाएगा, 2 नैनोसेकंड इसका डिले है, 2 नैनोसेकंड इसका डिले है, 2 नैनोसेकंड के बाद यहाँ पे पहुंचेगा। और ये जो वेव है यहाँ से चलेगी क्यू वाली पहले इसमें जाएगी 2 नैनोसेकंड, फिर इसमें जाएगी 1.5 नैनोसेकंड, फिर इससे इसमें से निकलेगी, फिर यहाँ पे जाएगी। तो 2 नैनोसेकंड इससे जाएगी डिले, 2 नैनोसेकंड हुआ क्यू में, फिर 1.5 नैनोसेकंड हुआ तो कितना हो गया 2 और 1.5 कितना हो गया 3.5 नैनोसेकंड, फिर यहाँ आया, फिर उसके बाद 3.5 नैनोसेकंड के बाद आया और यहाँ पर फिर से 2 नैनोसेकंड डिले हो जाएगा, तो 5.5 नैनोसेकंड यहाँ पर पहुंचेगी, 5.5 नैनोसेकंड में पहुंचेगी क्यू वाली अगर आएगी तब। इस पर ये नहीं मालूम मुझे क्या आएगी कि नहीं आएगी, बट ये मैं अब जनरली बता रहा हूँ। तो अगर ये चीज यहाँ से चलेगी, क्यू इनपुट यहाँ से चलेगा तो 2 यहाँ पर डिले होगा। तो सीवी लॉजिक सर्किट में जब कोई इनपुट देते हैं तो एकदम से हमें आउटपुट नहीं मिलता, उसमें कुछ ना कुछ डिले हो जाता है, टाइम में लॉजिक में डिले रहता है। और अगर आइडियल आपका कोई और गेट है नॉर गेट, उनका डिले टाइम 0 होता है, बट आइडियल कभी पॉसिबल नहीं है। तो इसमें डिले होगा, तो इसमें 2 होगा, इसमें 1.5 होगा, 3.5 हो गया और इसमें फिर से 2 होगा, 5.5 होगा, 5.5 यहाँ पर आ गया। अब ये वाली P आ गई 2 नैनोसेकंड में, ये 5.5 नैनोसेकंड, तो इसको 2 को वेट करना ही पड़ेगा। 2 को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे होल्ड रहना ही पड़ेगा, जब तक दूसरी वाली नहीं आ जाएगी तब तक इसको होल्ड रहना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जब दूसरी आ जाएगी तभी ये और गेट वर्क कर जाएगा। सिंगल इनपुट तो होता नहीं है नॉर गेट का, डबल इनपुट होता है। तो जब तक डबल नहीं आ जाएगा तब तक यहाँ से निकलेगा नहीं आउटपुट, तो आउटपुट तभी निकलेगा जब दोनों आ जाएंगे। तो इसको वेट करना पड़ेगा, जब वो वाला भी आ जाएगा यहाँ पर तभी ये यहाँ पे पहुंचेगा। अगर यहाँ तक की बात करी जाए तो P एकदम से पहुंच जाएगा, 0 सेकंड में यहाँ पे पहुंच जाएगा। और जो Q आएगा, Q निकल के आएगा। Q पहले तो Q और R यहाँ तक दोनों सेम ही आएंगे, और जब यहाँ से निकलने के बाद यहाँ पे बाई जो भी आउटपुट बनेगा यहाँ से लेके यहाँ तक Q R को लाने में टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, सेम टाइम पर आकर यहाँ से निकल जाएंगे। और यहाँ से निकलने के बाद 2 नैनोसेकंड में Q और R दोनों निकल जाएंगे। 2 नैनोसेकंड में निकलने के बाद फिर ये इसमें आने के बाद 1.5 का डिले हो जाएगा, और तो 1.5 का डिले हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 2 और 1.5 3.5 का डिले हो गया। ये 3.5 नैनोसेकंड में यहाँ पर आप इसको इनपुट मिलेगा, जबकि यहाँ पर P मिल जाएगा एकदम 0 सेकंड में। तो ये जब P जब तक वेट करेगा जब तक ये वाला नहीं आ जाएगा, तो वेट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों में जो डिले होगा तो मैक्सिमम इसका 3.5 होगा, इन दोनों पूछा जाता है, बट ऐसा नहीं पूछा, इनमें पूछा सारों में कितना डिले होगा।
तो जो हम कहते हैं कि सबका अलग अलग निकाल लो, जिसका ज्यादा हो वो हमारा होगा मैक्सिमम डिले, क्योंकि दूसरे वाले को तो होल्ड रहना ही पड़ेगा, वेट करना ही पड़ेगा। तो अब हम चलते हैं अपनी वर्किंग सीट पर। वर्किंग सीट हमारी कहाँ पर है? वर्किंग सीट ये है, तो इस वाली में चलते हैं। ये हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इस वाले 6 वाले क्वेश्चन को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देखो यहाँ पर एक चीज आपको देखनी पड़ेगी, इसमें आपको मल्टीप्लेक्सर के फंक्शंस आने चाहिए, तभी आप इसको निकाल सकते हो क्वेश्चन को, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर टी यहाँ से लेके यहाँ से क्यू चलेगा और आर चलेगा, तो यहाँ पर 2 नैनो सेकंड के बाद आ जाएगा, ये दोनों बराबर ही हो जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद बराबर ही हो जाएंगे, इनमें कोई डिले नहीं होगा, क्यू और आर में दोनों में कोई डिले नहीं होगा, सेम ही होगा। क्यू चलेगा, आर चलेगा, दोनों सेम टाइम पर 2 नैनो सेकंड के बाद यहाँ पे पहुंच जाएंगे। और यहाँ से एस चलेगा, ये 1.5 नैनो सेकंड के बाद यहाँ पे पहुंचेगा, 1.5 नैनो सेकंड के बाद यहाँ पहुंचेगा, क्योंकि इसका डिले टाइम कितना है, इसका डिले टाइम कितना, सॉरी इसका डिले टाइम कितना, 1 नैनो सेकंड, 1 नैनो सेकंड के बाद यहाँ पे पहुंचेगा। और ये इसका डिले कितना है, 2 नैनो सेकंड, है ना, ऐसा है। तो हमने देखना सबसे ज्यादा डिले किस में आएगा, और यहाँ से अगर टी चलता है, टी चलता है सीधा सीधा यहाँ भी जा रहा है टी, फिर यहाँ जा रहा है टी, यहाँ भी जा रहा है, तो ये सारी चीज किस पे डिपेंड कर रही है, टी पे डिपेंड कर रही है। ये जो यहाँ से निकलने वाला किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, टी पे डिपेंड कर रहा है। अगर टी जीरो है, टी अगर जीरो हो जाएगा तो इनपुट पी क्यू, इनपुट जो हमारा है पी क्यू, क्यू आर, सॉरी इनपुट क्यू आर होगा, ये पी क्यू गलत लिखा हुआ है, इनपुट क्यू आर कर लेना इसको, दिस इज क्यू आर, पी क्यू नहीं होगा, क्यू आर, इनपुट क्यू आर, ठीक है। तो जैसे अगर हम t इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो ये आएगा यहाँ पे 0। अब ये जो MUX है 2/1 का है, सेलेक्टिंग लाइन 1 है और इनपुट लाइंस 2 है, इनपुट लाइंस इसमें 2 है, सेलेक्टेड लाइन 1 है, ऐसा ही होगा 2⁻1 तो 2 ही होंगी। अब देखो यहाँ पर अगर इनपुट क्यू आर की जो वैल्यू है टी 0 हो जाएगा, तो ये सेलेक्टिंग लाइन 0 हो जाएगी, ये सेलेक्टिंग लाइन 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, दोनों ही हो सकती है। बट अगर टी 0 है तो ये सेलेक्टेड लाइन डेफिनेट सी बात है 0 होगी, और ये वाली 0 यहाँ से जाएगा तो इसमें इन्वर्ट कर देगा, ये 1 हो जाएगा, ये सेलेक्टिंग लाइन डेफिनेट सी बात है 1 होगी। जब ये टी 0 होगा तो ये सेलेक्टिंग लाइन 0 होगी और ये सेलेक्टिंग लाइन 1 होगी। ओके, ये पक्का हो गया है, इससे अलग कोई और कॉम्बिनेशन हो नहीं सकता कि ये 0 होगी ये 1। अगर ये नॉट गेट नहीं होता तो ये 0 हो जाती, और ये भी अगर सीधी लाइन होती, नॉट गेट नहीं होता, तो यहाँ पे ये भी 0 रहती, तो दोनों 0 0 रहती। जब टी 1 होता दोनों 1 1 रहती है ना। तो अब अगर हम कर देते हैं, अगर टी 0 हो गया तो ये 0 सेलेक्टिंग लाइन हो गई, ये 1 सेलेक्टिंग लाइन हो गई। जैसे 0 सेलेक्टिंग लाइन आती है तो जो मैंने बताया केवल I0 ये वाला ही इसके ऊपर जाएगा, यहाँ से जो होगी ये वाली चीज इसके आउटपुट पे मिलेगी, केवल 0 वाली ही इसके आउटपुट पे मिलेगी, 0 ही जाएगा इसके आउटपुट पे, I0 इसके आउटपुट पे जाएगा। ओके, जब I0 इसके आउटपुट पे जाएगा, अब ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक तो I0 में डिवाइड हो रहा है दूसरे वाले के लिए, और एक I1 में डिवाइड हो रहा है दूसरे वाले के लिए। बट इसकी सेलेक्टिंग लाइन 1 है, इसकी सेलेक्टिंग लाइन 1 है। जब ये तो इसकी सेलेक्टिंग लाइन 0 है, जब T0 लिया तो इसकी सेलेक्टिंग लाइन 0, तो ये वाला यहाँ से गया और ये यहाँ पर पहुंच गया, I0 यहाँ पर पहुंचेगा, ये वाला नहीं पहुंचेगा क्योंकि इसको सेलेक्ट नहीं करेगा। पहले नंबर पर 0 में इसको 0 ये सेलेक्ट करेगा, इसमें अब ये 1 है, पहले नंबर पर इसमें 1 है, तो इसका मतलब ये वाला जाने वाला, तो ये आपका जाएगा यहाँ से, और ये इसका आउटपुट यहाँ में, तो यहाँ तो वेव जाएगी ही नहीं, यहाँ तो वेव जाएगी नहीं, केवल यहाँ से चलेगा, यहाँ से निकल के। तो इसको 2 नैनो सेकंड वाले को अभी वेट करना पड़ेगा, 2 नैनो सेकंड वाला अभी स्टार्ट नहीं होगा, ये तो जाएगा नहीं, क्योंकि ये पी वाला आया है, ये तो जाएगा नहीं इसमें, केवल ये जाएगा पी क्यू आर वाला जो आया है सिग्नल, यहाँ से I0 की वजह से ये सेलेक्ट हुआ और 1 की वजह से ये सेलेक्ट हुआ, तो ये सिग्नल यहाँ से निकल के इस पे होकर ऐसे चला जाएगा, तो ये इसका मूवमेंट हो गया। तो अब इसके लिए कितने, इस सिग्नल के लिए कितने गेट्स को क्रॉस करना पड़ा,
पहले तो ये किसको करेगा, नॉर गेट को, तो 2 नैनो सेकंड लगेंगे। फिर ये MUX को क्रॉस करेगा तो 1.5 नैनो सेकंड लगेंगे। फिर ये दूसरे वाले MUX को क्रॉस करेगा तो कितने लगेंगे, 1.9 सेकंड। तो इसको QR को कितना टाइम लगा यहाँ तक पहुंचने में, 5 नैनो सेकंड लगे, ये जो मैंने लिखी हुई 5 नैनो सेकंड लगे। और अगर पी सिग्नल की बात करें तो पी सिग्नल सीधा सीधा यहाँ पे निकल के कितने में पहुंच रहा है, नॉर से कर रहा है तो 2 नैनो सेकंड लगेंगे। और फिर पी सिग्नल किस में जा रहा है, पी सिग्नल अभी ये अगर इसमें जाएगा, बट इसमें चला जाएगा तो इसका सिलेक्शन 0 पर अभी नहीं होगा, अभी तो ये वाला सिग्नल जाएगा। अगर सपोज कर लो ये सेलेक्ट हो जाता है तो इसमें ये हो जाएगा। तो इसको जाने के लिए कितना टाइम लगता है, अगर ये जाता भी कितना टाइम लगता है, 2 नैनो सेकंड इसको लगते हैं यहाँ से, और यहाँ पर निकलता है ये तो कितने लगते, 1.5 नैनो सेकंड। तो आउटपुट में कितने लगते, 3.5। अगर इसको जाता भी है तो इतने सेकंड में पहुंचता है इसमें। और अगर मैं टी की बात करूं, इनपुट टी कितने में पहुंचता है, ये सीधा यहाँ से जाता है ना, नॉट गेट से निकल के, फिर एक MUX लगता है इसको, तो ये कितने में पहुंचता है आपका, 1 नैनो सेकंड, 1.5 नैनो सेकंड, तो कितना 2.5 नैनो सेकंड में पहुंचता है, सीधा सीधा पहुंच जाता है। अगर ये यहाँ से जाता तो सीधा इसमें ऐसे पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी जब t 0 है। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब हमने देखना है कि अगर t 1 हो जाता है, t 1 हो जाता है, t क्या हो जाता है, 1, तो यहाँ पर आप करेक्ट कर लेना है, ये R और Q है, RQ है इनपुट। अब यहाँ पर देखो, अगर t 1 हो जाता है, जैसे t 1 होगा तो ये t 1 यहाँ पे सीधा सीधा पहुंच जाएगा, t 1 होगा, और यहाँ t इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 0 यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो अब आपको देखना है कि अब इस केस में ये सेलेक्टिंग लाइन 1 हो चुकी है, सेलेक्टिंग लाइन 0 हो चुकी है। जब इस केस में हम देखेंगे तो अब हमारा कौन सा सिग्नल जाएगा, ये 0 वाला तो जाएगा नहीं यहाँ पर, अब ये 1 वाला यहाँ पर जाने वाला है, 1 यहाँ पर जाएगा, इसका 1 का मतलब S जाएगा, है ना। तो TQ तो जाएगा नहीं, RQ तो जाएगा नहीं, सॉरी R है, RQ तो हमारा जाएगा नहीं, RQ तो जाएगा नहीं, RQ को मैंने लिख दिया नहीं, ये तो जाएगा नहीं। ठीक है, जब ये नहीं जाएगा तो अब कौन सा जाएगा, S जाएगा, S इस पे जाएगा, S यहाँ से चला, पहले नॉट गेट में गया, फिर किस में गया, फिर किस में गया, MUX में गया। ठीक है, जैसे ये इस पे आएगा, यहाँ पर सेलेक्टिंग लाइन 0 है तो ये तो जाएगा नहीं, इधर तो आएगा नहीं, है सीधा यहाँ से निकल के और यहाँ से होके यहाँ पर जाएगा, है ना, यहाँ से निकल के फिर आगे जाएगा, और फिर ये 0 वाला इस पे जाने वाला है, यहाँ पर आउटपुट इससे मिलेगा। आर यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ से हमारा S चलेगा और ये हमारे डायरेक्शन रहेगी चलने की, और ये यहाँ जाएंगे और ये हम यहाँ से निकल के यहाँ पहुँच जाएंगे। अब इधर आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर सेलेक्टिंग लाइन 0 हो चुकी है, तो 0 ही वाला जाएगा। तो 0 वाला जाएगा तो नॉट से निकला, S चला कहाँ से, नॉट से निकला, फिर एक MUX से निकला, फिर MUX से निकलने के बाद फिर आया, फिर एक नॉर फिर से पड़ गया इसके लिए, फिर नॉट से निकला, फिर एक और MUX पड़ गया इसको, MUX से निकला, तब आउटपुट आया। तो नॉट से कितना डिले है, 1 नैनो सेकेंड, MUX से कितना डिले है, 1.5। ये चीज गिवन है हमारे लिए, ये चीज आप क्वेश्चन में देखोगे तो ये चीज गिवन है। नॉर के लिए कितना डिले है, 2 नैनो सेकेंड, MUX के लिए कितना डिले है, 1.5 नैनो सेकेंड, टोटल कितने नैनो सेकेंड डिले हो गए, 6 नैनो सेकेंड डिले हो गए। तो ये जो वाली वेव आई 6 नैनो सेकेंड में डिले है, तो अब ये P वाला एक्टिव हो जाएगा, P वाला एक्टिव हो गया, इसका मतलब ये एक्टिव हो गया P वाला, तो ये पहुंच रहा है 3.9 सेकंड में, ये पहुंच रहा है 6 नैनो सेकंड में, ये पहुंच रहा है 5 नैनो सेकंड में, और ये पहुंच रहा है 2.95 नैनो सेकंड में। सबसे ज्यादा टाइम कौन ले रहा है, तो आपको होल्ड करना ही पड़ेगा, वेट करना ही पड़ेगा रिजल्ट के लिए, ये जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम टाइम ले रहा है, तो ऐसे आप निकाल सकते हो। तो ये ज्यादा टाइम ले रहा है, इसका आंसर क्या हो गया, 6 नैनो सेकेंड, और इसका आंसर क्या है, ए ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया। तो इसको भी 6, टी को भी 6 तक वेट करना पड़ेगा, टी को 3.5 ना रह के 6 तक वेट करना पड़ेगा, जब तक ये यहाँ पर नहीं आ जाता है ना। एक MUX निकाल दो, एक MUX निकाल दो तो 1.5, 3.5, 3.5 और 4.5 यहाँ पर वेटिंग आती है इसकी, 4.5 पर यहाँ पहुंच जाएगा, और ये पहुंच जाएगा यहाँ पर 2 नैनो सेकंड में। तो ये वेट करता रहेगा, फिर दोनों मिलेंगे तब यहाँ पे पहुंचेंगे।
तो जब तो यहाँ पे पहुंचेंगे तो ये टोटल दोनों कितने में जाएंगे, 6 और 6। तो ऑप्शन में क्या है 6, 6 ऐसा कुछ है। दोनों इनपुट जाएंगे ना, पी और क्यू के साथ जाएगा ये, तो पी और ये एस, पी और एस दोनों कितने में पहुंचेंगे, 6 और 6 में पहुंचेंगे, क्योंकि इसको वेट करना पड़ेगा, इस वाले सिग्नल को यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, तब तक ये यहाँ पे दूसरा वाला नहीं आएगा, ये तो 0 में ही पहुंच गया, ये वाला सिग्नल भी यहाँ पर नहीं आ जाएगा, तब तक ये आउटपुट नहीं देगा और गेट। इसलिए 6 और 6 दोनों मिलके कितने में पहुंचेंगे, 6 और 6 में पहुंचेंगे, इसलिए आंसर इसका 6-6 आ रहा है। तो ये दोनों सिग्नल हमारे एक साथ पहुंचेंगे टुगेदर। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। नाउ ऑप्शन चेक कर लेते हैं। आई एम गोइंग टू शेयर द क्विज टेस्ट। दिस इज योर क्विज टेस्ट। तो ये क्विज टेस्ट है, इसमें आप देखो, इसमें अगर हम देखें तो इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो दिस इज ओके, बाकी किसी पे ओके नहीं हो रहा है। पहला ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये वाला जो MUX है हमारा, इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि जब ये 0 होगा और ये 1 होगा, क्योंकि यहाँ इन्वर्टर लगा हुआ है, तो ये वाली चीज आपकी यहाँ पर, ये वाला आउटपुट आपका जाएगा यहाँ पर, और इसमें ये वाला जाएगा, 1 हो गया ना ये। तो ये यहाँ से चल के और यहाँ से चल के यहाँ से आपको आउटपुट मिलेगा। और जब अगर ये 0 होगा और ये 1 होगा तब तो ऐसा मिलेगा, और जब इस पे अगर हम 1 देते हैं तो ये 1 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, तब ये 1 वाले को आउटपुट देगा, तब ये 1 वाले को आउटपुट देगा, यहाँ से ये चलेगा और ये यहाँ से निकलेगा, और फिर ये 1 ये इस वाले का यहाँ पे निकलेगा, इस वाले का यहाँ से निकलेगा, इसका मतलब यहाँ से होता हुआ यहाँ पर जाएगा ऐसे। तो ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते, दोनों नहीं जा सकते, क्योंकि ये आपके यहाँ पे इन्वर्टर, अब मैं आपको दे रहा हूँ, अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ तब आपका मैक्सिमम डिले क्या होगा, तो ये आप खुद से सॉल्व करें। अगर इस चीज़ को यहाँ से हटा देते हो और यहाँ पर एक लाइन बना देते हो सीधी, नॉट गेट नहीं है, लाइन बना देते हैं, तो 0 दोगे तो दोनों 0 हो जाएंगी, 1 दोगे तो दोनों 1 हो जाएंगी। तो अब आपका जब 0 दोगे तो यहाँ से ये वाला ही निकलेगा और यहाँ से भी यही वाला निकलेगा, फिर ये इधर से जाने लगेगा, और अब यहाँ से जब बंद हो गए तो ये यहाँ से निकलेगा और ये भी यहाँ से निकलेगा, तब ये यहाँ से निकलने लगेगा, तो ये बदल जाएगा, फिर इसका आंसर बदल जाएगा। तो ये आप अपने आप से खुद से सॉल्व करें। तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। A three input majority gate is defined by the logic function. This is the logic function. Okay, इस लॉजिक फंक्शन से डिफाइन किया गया है, और आपको पूछा है कि द फॉलोइंग गेट इज रिप्रेजेंट बाय द फंक्शन इज, इनमें से कौन से वो गेट होंगे जो इसको रिप्रेजेंट करेंगे, वो आपसे पूछा है। तो ये कैसे निकालेंगे हम, मेजॉरिटी फंक्शन का आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी। मेजॉरिटी फंक्शन में क्या होता है, मेजॉरिटी फंक्शन में ये होता है, जैसे ये फंक्शन दिया हुआ है, इसकी अगर ट्रुथ टेबल बनाए, इसकी ट्रुथ टेबल बनाए, तो ABC 3 का फंक्शन है, तीन आपके हैं, A और B और C, ABC 3 का फंक्शन है। अगर इसकी ट्रुथ टेबल बनाओ तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको, M। अगर तीनों 0 0 है ना, ये 0 0 1 0 1 0 ऐसे बना सकते हैं, और ये 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1, ये ऐसे हो जाएगा। तो इसमें आ जाएगा हमारा, इसमें आ जाएगा 0 0 0। अब आपको ये फंक्शन दे रखा है AB BC CA,
ए बी बी सी सी ए तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही मिलेगा आपको। ए बी जीरो, बी सी जीरो, सी ए जीरो, तो ये भी जीरो मिलेगा। इसमें ए बी जीरो, बी सी जीरो, सी ए जीरो, ये भी जीरो ही मिलेगा। ए बी जीरो, बी सी वन हो जाएगा और सी ए जीरो हो जाएगा, इससे वन मिलेगा आपको। और ए बी जीरो, बी सी, बी और सी का मल्टीप्लाई करोगे जीरो, और सी और ए का मल्टीप्लाई करोगे जीरो, तीनों को ऐड करोगे तो जीरो। यहाँ पर ए बी का मल्टीप्लाई करोगे जीरो, बी सी का मल्टीप्लाई करोगे जीरो, और सी और ए का मल्टीप्लाई करोगे तो वन आ जाएगा, ए वाला सी ए वन आ जाएगा, तो यहाँ पे वन आ गया। और यहाँ पर ए बी का मल्टीप्लाई करोगे तो वन, और बाकी बी सी का मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो, और सी ए का मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो। इसका मतलब इसका आंसर वन आएगा। यहाँ पे ए बी का मल्टीप्लाई करोगे तब भी वन, बी सी का मल्टीप्लाई करोगे तब भी वन, और सी ए का मल्टीप्लाई करोगे तब भी वन, और ऑल थ्री को ऐड करोगे तब भी वन ही आएगा। वन प्लस वन वन ही होता है, वन प्लस वन वन ही होता है, फिर वन प्लस वन फिर वन ही हो जाएगा। इसका मतलब ये वाली चीज हमारी आएगी। तो यहाँ से हमें ये पता लग गया जो ये जो लॉजिक मेजॉरिटी लॉजिक सर्किट दिया हुआ है, मेजॉरिटी गेट इज डिफाइंड बाय द लॉजिक फंक्शन एम ए बी सी। यहाँ से हमें ये पता लग गया कि जब एटलीस्ट टू वन होंगे, यहाँ पर टेबल में देखो, एटलीस्ट टू इनपुट वन होंगे, तब आउटपुट क्या होगा, वन होगा। आउटपुट क्या होगा, वन होगा। जब एटलीस्ट टू इनपुट वन होंगे तब आउटपुट वन होगा। टू इनपुट वन होंगे, देखो यहाँ पर कोई भी इनपुट वन नहीं है तब भी जीरो, एक इनपुट वन है तब भी जीरो, एक इनपुट वन है तब भी जीरो, दो इनपुट वन है तब वन, एक इनपुट वन है तब जीरो, दो इनपुट वन है तब वन, दो इनपुट वन है तब वन, और थ्री इनपुट वन है तब तो वन होगा ही। एटलीस्ट टू इनपुट वन होंगे तब आपका वन होगा। तो इसका मतलब जो हमें दिया हुआ है, मेजॉरिटी गेट इज डिफाइंड बाय द लॉजिक सब फंक्शन दिस, विच वन ऑफ द रिप्रेजेंट द बाय द फंक्शन दिस, है ना। पहले ये दे दिया, फिर ये हमने ये वाला निकालना। तो ये हम अपने एक्सरसाइज वर्किंग शीट पर डिस्कस करेंगे। पहले हमने इसका नेचर देख लिया, एटलीस्ट टू इनपुट वन गिव्स आउटपुट वन, है ना, एटलीस्ट टू, और थ्री इनपुट वन देन आउटपुट वन। तो अब ये हमने नेचर देख लिया, अब हम निकालेंगे इसका। मैं वर्किंग शीट को शेयर करने जा रहा हूँ। So this is my working sheet और क्वेश्चन नंबर 6 ये हमें गिवन है। तो यहाँ से हमने ये निकाल लिया, ये फंक्शन से हमें, फंक्शन ऑफ m से हमें क्या पता लग रहा है, थ्री इनपुट ऑफ मेजॉरिटी गेट मीनिंग एटलीस्ट टू इनपुट आर हैविंग लॉजिक वन, आउटपुट विल बी वन। ये अभी मैंने वहां पे दिया था, ए बी वन हो या बी सी वन हो या सी ए वन हो और या ए बी सी वन हो तो आउटपुट विल बी वन आएगा। इन ऑल अदर केसेस आउटपुट क्या होगा, जीरो होगा। ये अभी ट्यूटोरियल मैंने वहां पे ड्रॉ की थी। तो इससे ये पता लग गया कि ये हमारा इस तरह का लॉजिक फंक्शन है। तो इसका हमने एक ब्लॉक डायग्राम बना लिया, ये ब्लॉक डायग्राम बन गया जिसमें थ्री इनपुट मेजॉरिटी गेट लग गया। ये कोई थ्री इनपुट मेजॉरिटी गेट है, ये गेट का ही फंक्शन है। तो ये वाला बन गया हमारा, ये इनपुट दिया हमने, यहाँ पर एम ए बी सी आउटपुट मिल गया। वन कब आएगा, एटलीस्ट टू इनपुट वन और ऑल थ्री वन। जीरो कब आएगा, अदरवाइज केस में। ये ऐसे हमने लिख लिया। अब ये हमें पूछा क्या है, हमसे ये पूछा है आस्क इन क्वेश्चन, ये वाला बनाओ मेजॉरिटी गेट एम, जिसमें एक एम ये हो, फिर एक ये हो और एक ये हो, तब आउटपुट निकाल। तो पहले मैं ये भी मेजॉरिटी गेट है, ये भी मेजॉरिटी गेट है, ये सीधा इनपुट दिया हुआ है। तीन इनपुट ले लेता हूँ, एक ये इनपुट ले लिया, एक ये इनपुट ले लिया, एक इनपुट ले लिया। पहला मेजॉरिटी गेट का ब्लॉक डायग्राम मैंने ये बना लिया, जिसपे ए बी सी तीनों दे दिए, और उसके बाद मैंने क्या लगा दिया, इस पे एक नॉट गेट लगा दिया। तो जिससे जो मेरा आंसर आएगा यहाँ पर तो आएगा एम ए बी सी, जैसे कि हमने ये बनाया मेजॉरिटी गेट एम ए बी सी, इसका बार हो जाएगा नॉट गेट लगाते ही, ठीक है। दूसरा ये वाला दे रखा है, तो इसमें क्या है कि ए बी तो दे रखे डायरेक्ट, सी पे बार लगा रखा है।
तो ए मैंने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया इस पर, बी इस पे डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया, सी पे नॉट लगा दिया, तो यहाँ पे मिल जाएगा मुझे सी बार। ये सी बार आ गया, ये ए आ गया और ए बी आ गया। ये मेजॉरिटी गेट का ब्लॉक डायग्राम बना दिया। उसके बाद यहाँ पे मुझे आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। और जो आउटपुट होगा वो इसका फंक्शन होगा थर्ड वाले का। फिर सी सीधा सीधा डायरेक्ट ही एक ऐसे लगा के यहाँ से ये सीधा इस पे दे। अब ये सब सारे ये जो इनपुट है, ये जो इसके फंक्शन हो गए, इसको सपोज कर लो दिस इज एक्स, दिस इज वाई और दिस इज जेड, सी जेड। एक्स वाई जेड अब इस पे दे दिए तो एम, तो यहाँ पर बन गया एम एक्स वाई जेड। एम क्या है, एम है एक्स क्या है, एम बार एम ए बी सी। वाई क्या है, एम ए बी सी बार। वाई ये है ना। यहाँ पर क्या आएगा, एम ए बी और सी बार, ऐसे कुछ आएगा। वाई ये आएगा और ये यहाँ पे चला जाएगा और सी सीधा जेड गैस सी। तो ये मेरा पूरा सर्किट बन गया। ये मुझे पूछा कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आने वाला है। तो इसको निकालने के लिए हमने क्या किया, ये ब्लॉक डायग्राम बन गया। इसकी ट्रुथ टेबल ड्रॉ कर ली, जैसे उसकी ट्रुथ टेबल ड्रॉ की थी, इसकी भी ट्रुथ टेबल ड्रॉ कर ली। इसकी ट्रुथ टेबल में क्या आएगा, अगर मैं इसको सारा क्लियर कर दूं, इसकी ट्रुथ टेबल में क्या आएगा, क्या तो इसकी ट्रुथ टेबल हमने बनानी है, इसकी ट्रुथ टेबल बनानी है। तो अब इसकी ट्रुथ टेबल बना देते हैं। तो इसमें ए बी सी तो अप्लाई हो रहे हैं, तो वो लिख दिए ए बी सी, ये अप्लाई हो रहे हैं ए बी सी। तो ये कॉम्बिनेशन भी आप लिख सकते हो, ए बी सी के कॉम्बिनेशन कैसे लिखने हैं। उसके बाद ए बी सी एक उस पर जा रहा है, एक्स वाई जेड निकालने हैं मुझे, है ना। ए बी सी तो हमारे कितना हो जाएगा, ए बी सी। अब यहाँ पर आपको छोटा करना पड़ेगा मुझे, इसको मैं छोटा कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, ए बी सी यहाँ पर इस वाले पर ए बी सी अप्लाई हो रहा है, ए बी सी अप्लाई हो रहा है इस वाले पर, और इस वाले पे ए बी सी अप्लाई हो गया। यहाँ पर मिल रहा है एम ए बी सी बार, एम ए बी सी बार मिल रहा है। तो इस पे क्या मिलेगा, इस पे क्या मिलेगा, तो इस पे क्या मिलेगा हमारा, ये मिल जाएगा। जैसे ए बी सी अप्लाई हो रहा है, ए बी सी पहले वाले पर अप्लाई हो रहा है, तो पहले वाला जो एक्स रिजल्ट है वो है क्या, वो एक्स रिजल्ट है। जब आप फिगर में देखोगे एम ए बी सी पहले ब्लॉक डायग्राम पर है ना, ए बी सी और उसका बार। तो मेजॉरिटी गेट का नेचर क्या होती है, जब आपके दो हाई होते हैं, एटलीस्ट टू लॉजिक 1 है ना, टू इनपुट लॉजिक 1, देन आपको मिलता है 1। अदर केसेस में 0 मिलता है। तो यहाँ पर तो कोई लॉजिक 1 नहीं है पहले केस में, तो यहाँ पर क्या मिलेगा 0। जब 0 मिलेगा, बट उसका x की वैल्यू क्या है, इसका बार है, तो बार है, इसका मतलब ये 1 हो जाएगा, 0 का 1 हो गया। यहाँ पे भी लॉजिक दो 1 नहीं है ना, दो इनपुट लॉजिक 1 नहीं है, तो इसका मतलब क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 0 का क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। अब इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया ना, जो मेजॉरिटी गेट के जो नेचर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स निकाली हैं टेबल से, उसमें क्या है कि दो इनपुट हमारे लॉजिक 1 होने चाहिए, तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अदर केसेस में 0 मिलेगा। तो जहां पर इसमें एम ए बी सी में 1 मिल रहा था, वहां पे 0 हो जाएगा, जहां पे 0 मिल रहा था वहां 1 हो जाएगा, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट है। एक्स क्या कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो पहला ए बी सी हमें इस पे डालना है, तब अब मुझे एक्स मिलेगा, है ना, जो यहाँ आएगा उसका कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। तो ये मैं निकाल लेता हूँ। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर,
ये 0 0 0 तीनों 0, मिलना चाहिए था 0, बट कॉम्प्लीमेंट की वजह से क्या मिल गया, कॉम्प्लीमेंट की वजह से 1 मिल गया। 0 0 1 मिलना चाहिए था मेजॉरिटी गेट का 0, कॉम्प्लीमेंट की वजह से 1 मिल गया। 0 1 0 मिलना चाहिए था 0, कॉम्प्लीमेंट की वजह से 1 मिल गया। 0 1 1 मिलना चाहिए था 1, कॉम्प्लीमेंट की वजह से 0 हो गया। 1 0 0 मिलना चाहिए था 0, हो गया कॉम्प्लीमेंट से 1। 0 1 0 सॉरी 1 0 1 मिलना चाहिए था 1, क्योंकि टू लॉजिक 1 हेयर हो गया 0। 1 1 0 टू लॉजिक 1 हेयर मिलना चाहिए था 1, हो गया 0। 3 1 हेयर मिलना चाहिए था 1, हो गया 0, क्योंकि x की जो नेचर है अब कॉम्प्लीमेंट है। अब आ जाओ y की जो वैल्यू है, y किसका फंक्शन है, y इज बेसिकली ये है, यहाँ पर जो आएगा इस गेट से लगाने के बाद, इस मैजिक लॉजिक मेजॉरिटी गेट में निकलने के बाद y आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एम ए बी ए कॉमा बी कॉमा सी बार, ए बी और सी बार तीनों को निकालने के बाद यहाँ पे मिलेगा। तो ये मैं देखता हूँ फिर से, इसमें सी बार और लिख लेते हैं हम अपनी तरफ से। तो सी का कॉम्प्लीमेंट लिख दो, 0 का 1 1 का 0 0 का 1 1 का 0 0 का 1 1 का 0 0 का 1 1 का 0। अब ये इसमें और इसमें देखना है, जब इसमें और इसमें देखेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, 0 0 1, तो एक 1 है 0 आएगा, क्योंकि इसमें अब कॉम्प्लीमेंट नहीं लेना है। बाई क्या है, बाई ये है, बाई है सिर्फ एम ए बी सी बार। तो 0 0 1 एक 1 है, आप कॉम्प्लीमेंट नहीं लेना है, सॉरी बार नहीं, कॉम्प्लीमेंट नहीं है, सी बार इसका कॉम्प्लीमेंट नहीं है, सी बार तो है बट ये वाला कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये वाला नहीं है, ये नहीं है, ऐसे बाई इजिकल टू एम ए बी सी बार। तो एम ए सी बार, इसमें अगर हम इन तीनों को लेना है मुझे, तो मेजॉरिटी गेट ये एम फॉर मेजॉरिटी गेट की क्या टेबल बनी थी जब हमने निकाला था ए बी सी का, उसमें ये बताया गया, उसमें ये उससे ये कॉन्सेप्ट बनता है कि अगर दो इनपुट लॉजिक 1 है तब 1 आएगा, और एटलीस्ट 2 इनपुट लॉजिक 1 है तब 1 आएगा, अदर केसेस में 0 आएगा। तो यहाँ पर ए बी और सी बार में चेक करेंगे, 0 0 1 1 लॉजिक इनपुट 1 0 0 0 0 0 0 0 मतलब 0 0 1 1 दो लॉजिक इनपुट 1 1 आ गया। 0 1 0 एक लॉजिक इनपुट 1 0 1 0 1 दो लॉजिक इनपुट 0 दो लॉजिक इनपुट 1 1 आ गया। 1 0 0 एक लॉजिक इनपुट 1 0 आ गया। 1 1 1 थ्री लॉजिक इनपुट 1 1 आ गया। 1 1 1 1 0 टू लॉजिक इनपुट 1 1 आ गया। जेड जेड तो हमारा क्या है, सीधा सीधा सी है, कॉपी है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर जेड तो सीधा सीधा यहाँ से कनेक्ट किया हुआ सी ए आ रहा है, सी सिग्नल ये आ रहा है, और यहाँ से सीधा सीधा जेड को यहाँ से कनेक्ट कर दिया है, क्योंकि आपको बाद में क्या पूछा है, ये वाली चीज पूछी हुई है, एम ए बार एम बड़ा वाला आपने बनाना है, इन तीनों को मिला के एक मेजॉरिटी गेट बनाना है, एम ए बी सी बार, इसमें एक दो मेजॉरिटी गेट ये लगे हैं, ये वाले दो मेजॉरिटी गेट लगे हुए हैं, एक डायरेक्ट इनपुट लगा हुआ है, इस तरह का आपने एक और मेजॉरिटी गेट बनाना है। तो ये बड़ा ब्लॉक डायग्राम हो गया पूरा, जिसमें दो मेजॉरिटी गेट लगे हुए हैं, तीसरा से उनको कंबाइन करके इस पे दे के ये आपने बड़ा वाला बनाना है। तो ये बना लिया आपने। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये हो गया, आपने ये देखा, यहाँ पर हमने आगे तो जेड क्या है, ज़्यादा डायरेक्टली सी है, जेड क्या है डायरेक्टली सी है, तो सी हमने सीधा सीधा लिख दिया, ये सीधा यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे लिख दिया। अब सबका फिर से बनाना है, अब इन तीनों में देखना है मैंने, इन तीनों में क्या है, 1 लॉजिक इसका एम एक्स वाई जेड का बनाना है ना, तो 1 लॉजिक 1 0 2 लॉजिक 1 1 2 लॉजिक 1 1 1 लॉजिक 1 0 2 लॉजिक 1 1 1 लॉजिक 1 0 1 लॉजिक 1 0 2 लॉजिक 1 1, ये इसका एम है, डायरेक्ट इतना आउटपुट आया। ठीक है, अब जो एम है बेसिकली किसका फंक्शन है, ए बी सी का फंक्शन है, ए बी सी का फंक्शन है, जो ए बी सी है ना,
जब ए बी सी ये इसका फंक्शन है तो इसका अब हम इसके मिन टर्म निकाल लेते हैं, कौन कौन से हैं मिन टर्म, कहाँ कहाँ पर इसका वन आ रहा है। तो जैसे अब ए बी सी का अब अगर हम देखें, ये वाली टेबल को देखें यहाँ से, तो ये क्या है जीरो, ये हमारा क्या है जीरो डेसिमल नंबर है, ये वन डेसिमल नंबर है, ये टू डेसिमल नंबर है, ये थ्री डेसिमल नंबर है, ये फोर डेसिमल नंबर है, ये फाइव डेसिमल नंबर है, ये सिक्स डेसिमल नंबर है और सेवन डेसिमल नंबर है। तो मुझे एक्सप्रेशन निकालना है कि जो एम का एक्सप्रेशन होगा वो फाइनली क्या होगा। तो मुझे देखो यहाँ पर वन मिल रहा है, यहाँ पर वन मिल रहा है, और यहाँ पर वन मिल रहा है, और यहाँ पर वन मिल रहा है। इसका मतलब मेरे जो मिन टर्म्स हैं वो कौन कौन से हैं, 1 2 4 7। अब मैं मिन टर्म्स को लेके के मैप ड्रॉ कर दूंगा इसका। के मैप क्या होगा इसका, वो ये होगा, मैं इसको रब कर देता हूँ, इसका के मैप क्या होगा वो मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर। तो अब इसका के मैप ड्रॉ करूंगा। तो ए बी इधर ले लेता हूँ, थ्री वेरिएबल्स है, सी इधर ले लेता हूँ, ए बी को इधर ले लेंगे 0 0 0 1 1 1 1 0, और सी अकेला है, 0 और 1 दो ही पॉसिबिलिटी है। ए बी की कितनी पॉसिबिलिटी है, 4। तो इनको मैं एक कॉलम और उसमें ड्रॉ कर दूंगा। जब यहाँ पे 0 0 तीनों 0 होंगे तो 1 0 आएगा, है ना। और ये वाले इस वाले में 0 0 1 0 0 1 का मतलब यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ पे 0 1 0 यहाँ पे क्या आएगा, 0 1 0 यहाँ पे आएगा 2, और यहाँ पे आएगा 0 1 1 यहाँ पे आएगा 3, और यहाँ पर आएगा 1 1 0 यहाँ पे क्या आएगा, ये पहले ये आएगा 1 1 0 0 यहाँ पर आएगा 4, और यहाँ पर आएगा 1 1 0 1 यहाँ पर आएगा 5, और 1 1 0 यहाँ पे आएगा 6, और 1 1 1 यहाँ पे आएगा 7। तो मैं जहाँ पर मेरे हैं 2 पर मिनटर में वहाँ पे 1 लिख दूंगा, ये 1 लिख दिया। 1 पर मिनटर में यहाँ पे भी मैंने 1 लिख दिया, ये 1 की प्लेस है। और 4 पर मिनटर में यहाँ पे भी मैंने 1 लिख दिया। ये सब मैंने आपको बताया हुआ है, आप गूगल क्लासरूम में जाके वीडियो है उनको देखो तो आपको सारा पता लग जाएगा। 7 यहाँ पे आ गया। अब इसमें कहीं से मुझे ना तो 8 का ग्रुप बन सकता, 8 को कलेक्ट करके भी ग्रुप नहीं बन सकता, 4 को कलेक्ट करके भी ग्रुप नहीं बन सकता, 2 को कलेक्ट करके भी ग्रुप नहीं बन सकता, है ना। इस ऑर्डर में हमने ग्रुप बनाना होता है, 16 8 4, है ना। ऐसा नहीं 6 को कलेक्ट करके बना सकते हैं, 2n के ऑर्डर में बनाना होता है ना, 2n के ऑर्डर में बनाना होता है। या तो n की वैल्यू 0 रख दो, जितने n इज द नंबर ऑफ वेरिएबल को शो कर रहा है, तो n की वैल्यू 0 रख दो तो 2 का ग्रुप बन सकता है। 2 1 को कलेक्ट कर लो, n की वैल्यू 1 रख दो, 0 रख दो, सॉरी 1 1 1 0 रख दोगे तो 1 का ग्रुप बना सकते हो सिंगल का। n की वैल्यू 1 रख दोगे तो 2 को कलेक्ट करके बना सकते हो। n की वैल्यू 2 रख दो तो 4 को, n की वैल्यू 3 रख दो तो क्या आएगा 8 को, और n की वैल्यू 4 रख दो तो 16 को। ऐसे इस फॉर्म में हम ग्रुप बना सकते हैं, और कोई फॉर्म नहीं। ऐसा नहीं 6 को कलेक्ट करके ग्रुप बना सकते हैं, इसके ऑर्डर में n नंबर ऑफ वेरिएबल को शो कर रहा है 0 1 2 3 इस तरह से। तो यहाँ पर तो आप ग्रुप नहीं बना सकते, सिंगल का ही ग्रुप बनने पॉसिबल है। सिंगल का आपने ग्रुप बना लिया, सिंगल का ग्रुप बना लिया। सपोज कर लो इस वाले की बात करें, इस वन की बात करें तो ये क्या है 0 0 1 0 0 1 का मतलब a बार b बार c। इस वन की बात करें तो क्या है ये 0 1 0 a b c बार। इस वाले वन की बात करें तो क्या है ये 1 0 0, इसका मतलब a b बार c, a b बार c, जहाँ पे 0 है वो b बार और c बार में ही आएंगे। इसके बाद इस वाले वन की बात करें 7, यहाँ पे तीनों 1 1 1 है तो इसका मतलब a b c। तो ये वाला हो गया हमारा ना। अब ये जो एक्सप्रेशन है, ये किसको डिनोट कर रहा है, a XOR v XOR c, v XOR c, ये XOR को डिनोट कर रहा है। तो ये तीनों इनपुट्स में XOR को डिनोट कर रहा है। तो ये कौन सा होगा, 3 इनपुट XOR गेट होगा। XOR का पता कैसे लगेगा ये भी मैं बता देता हूँ। XOR की प्रॉपर्टी होती है, XOR का अगर हम देखें XOR की प्रॉपर्टी होती है
एक्सॉर की प्रॉपर्टी होती है अगर ऑड नंबर ऑफ लॉजिक 1, ऑड नंबर ऑफ लॉजिक 1, ये आप यू शुड रिमेंबर एवरी टाइम, ये आपके लिए बहुत यूजफुल है। ऑड नंबर ऑफ लॉजिक 1 इनपुट, लॉजिक 1 इनपुट, 1 इनपुट, अगर हम ऑड नंबर ऑफ लॉजिक 1 इनपुट दें, कितने भी इनपुट का एक्सॉर हो, ऑड नंबर ऑफ लॉजिक 1 इनपुट दें, तब आपको आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट आपको क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। हाई का मतलब 1, आउटपुट हाई, हाई का मतलब 1, आउटपुट हाई होगा, हाई का मतलब 1। ये लाइन आप हमेशा याद रखो, ऑड नंबर ऑफ लॉजिक 1 इनपुट देन हाई। जैसे अब यहाँ पे देखो 0 0 0, कोई भी हाई नहीं है तो 0 0 0 1, एक हाई है तो 1 मिल रहा है, यहाँ भी एक हाई है फिर भी 1 मिल रहा है, यहाँ पर 2 हाई है तो 0 मिल रहा है, और यहाँ पर एक हाई है तो 1 मिल रहा है, यहाँ पर फिर 2 हाई है फिर 0 मिल रहा है, यहाँ पर 2 हाई है फिर 0 मिल रहा है, और यहाँ पर 3 हाई है फिर 1 मिल रहा है। मतलब ऑड नंबर ऑफ हाई है, 3 1 है, लॉजिक 1 है तो आपको 1 मिल रहा है। तो ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें और इसमें, इन तीनों वेरिएबल में रिलेशन क्या है, एक्सॉर का रिलेशन है। दैट्स वाई ये हमारा एक्सॉर का, अगर ये एक्सप्रेशन, ये बूलियन एक्सप्रेशन है 3 इनपुट एक्सॉर गेट की, ये बूलियन एक्सप्रेशन है 3 इनपुट एक्सॉर गेट की, तो ये अगर आपको पहचान नहीं है तो आप ऐसे ही बता सकते हो कि इन तीनों में रिलेशन एक्सॉर का है। जब ऑड नंबर ऑफ लॉजिक 1 होंगे इनपुट पर तो आपका आउटपुट 1 ही मिलेगा। ये चेक कर लो, आप यहाँ से देख लो, तो एक्सॉर की प्रॉपर्टी है, और इसी टेबल से आपकी ये वाली आई हुई है इक्वेशन, इसका मतलब ये एक्सॉर गेट होगा, डेफिनेट सी बात है। तो ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हमारा ये है, आंसर क्या देख लेते हैं इसका, क्यूज में आंसर क्या है वो देख लेते हैं। क्यूज में आपका आंसर क्या है, ये वाला आंसर है 3 इनपुट एक्सॉर गेट। तो बी आंसर आप अगर क्लिक करोगे, ए आंसर क्लिक करोगे तो नहीं आएगा, बी आंसर क्लिक करोगे तब आपका आएगा। ये आंसर आपका नहीं आएगा, इसका बी आंसर है, इसका क्या है, बी आंसर इसका है। ए आंसर क्लिक करोगे तो आपका नहीं आएगा, बी आंसर इसका है। इसका मतलब सी भी नहीं होगा, इसका डी भी नहीं होगा, बी इसका करेक्ट है। तो ये आपका इतना क्वेश्चन हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, हम सॉल्व करते हैं ये वाला क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन। यहाँ पर आपको दिया हुआ है ए यूनिवर्सल लॉजिक गेट कैन इम्प्लीमेंट वाई अ बूलियन फंक्शन कनेक्टिंग sufficient number of them appropriately, 3 gates are shown, which one of the following statement is true। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या है, ये दिया हुआ कि जब हम हमारा यूनिवर्सल गेट, आप जैसे तो इन जनरल मानते हो, ये बेसिक गेट 3 है आपके, और गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट। एंड और नॉट गेट की बात करें, ये बेसिक गेट्स हैं, और नैंड और नॉर आपके यूनिवर्सल गेट है। नैंड और नॉर कैसे गेट है, यूनिवर्सल गेट हैं दोनों। नैंड और नॉर को इम्प्लीमेंट करके हम अदर गेट्स को भी बना सकते हैं, अदर गेट्स को भी बना सकते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है कि वो गेट जिसको इम्प्लीमेंट करके हम कोई दूसरा गेट बना सकते हैं, वो हमारा क्या बन सकता है, यूनिवर्सल गेट हो सकता है ना, यूनिवर्सल गेट हो सकता है। तो यहाँ पर ये लॉजिक, हमने एक कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो यूनिवर्सल गेट इनमें से कैन इम्प्लीमेंट एनी बूलियन फंक्शन बाई कनेक्टिंग सफिशिएंट नंबर ऑफ देम एप्रोप्रिएटली, ये वाली चीज यूज करनी है। तो आप जैसे अगर इसमें देखो तो इसमें कौन सा पहला गेट तो और गेट है, ये तो है नहीं यूनिवर्सल गेट। जैसे ये गेट 1 इज यूनिवर्सल गेट नहीं है, गेट 2 इज यूनिवर्सल गेट नहीं है, ये भी आंसर गलत है। गेट 3 इज यूनिवर्सल गेट, ये गेट 3 यूनिवर्सल गेट हो सकता है। इसका पीपल्स इस आंसर को देते हैं, ये आंसर करेक्ट नहीं है इसका, नन ऑफ द गेट इज यूनिवर्सल गेट। गेट 3 हमारा यूनिवर्सल गेट हो सकता है, क्योंकि इस गेट को इम्प्लीमेंट करके मैं कोई और गेट भी बना सकता हूँ। जैसे सपोज कर लो इस गेट का मैं इम्प्लीमेंट करके और मैं नॉट गेट बना सकता हूँ, इस गेट का इम्प्लीमेंट करके
नॉट गेट बना सकता हूँ। कैसे? x और y यहाँ पर दिया हुआ है, तो y को मैं क्या करूँ, ग्राउंड कर दूँ, y को ग्राउंड कर दूँ तो मुझे नॉट गेट मिलने लगेगा, नॉट गेट मुझे मिल जाएगा। इसका यहाँ पे क्या मिलेगा, मुझे x बार मिलेगा, x बार मिलेगा। F3 आपको दिया हुआ है, F3 की वैल्यू क्या दी हुई है, x बार प्लस y, y तो अब 0 हो चुका है, y तो 0 हो चुका है, तो F3 इज इक्वल टू एक्स बार। अगर आप यहाँ पे 1 x की वैल्यू 1 लगाओगे तो यहाँ पे 0 मिलेगा, x की वैल्यू 0 लगाओगे तो यहाँ पे 1 मिलेगा। तो अब ये नॉट गेट बन चुका है। अगर मैं इसको इम्प्लीमेंट करके नॉट गेट बनाना चाहूँ तो नॉट गेट बन गया, y को केवल ग्राउंड ही करना पड़ा है। अगर इसमें ऐसा नहीं होगा, इसको इसका मैं नॉट गेट बना सकता हूँ, नहीं बना सकता। चाहे आप x को ग्राउंड कर लो, चाहे y को ग्राउंड कर लो, नहीं बनेगा। चाहे x को ग्राउंड कर लो, y को, यहाँ भी नहीं बनेगा। तो नॉट गेट इससे बन गया। इसका मतलब ये गेट कैसा है, यूनिवर्सल की तरह एक्ट कर सकता है। दिस गेट कैन एक्ट एज ए यूनिवर्सल गेट। अब हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे उस पर, तुम्हारे किस पर, जो आपका वर्क सीट है उस पर डिस्कस करेंगे। तो वर्क सीट पे चलते हैं। तो ये हम वर्क सीट पे आ गए यहाँ पर, तो यहाँ हम इसको डिस्कस करेंगे। तो गेट 1 यहाँ मैंने बोला हुआ है, और गेट बेसिक गेट है, वी कैन नॉट बी इम्प्लीमेंट एनी अदर गेट विद दिस। एंड गेट बेसिक गेट है, वी कैन नॉट इम्प्लीमेंट अदर गेट बाय यूजिंग एंड गेट, है ना। गेट 3 इज एक्ट एज ए इन्वर्टर इफ y इज ग्राउंडेड। y ग्राउंडेड कर दोगे तो x का x बार हो जाएगा। अभी अभी मैंने बताया कैसे हो जाएगा, x का x बार हो जाएगा। इस गेट को यूज करके हम और गेट भी बना सकते हैं। सपोज कर लो मैंने ये और गेट का इक्वेशन क्या होती है, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और गेट बनाना है मुझे। तो अब इसमें क्या करता हूँ, पहले मैं वो और गेट लिख लेता हूँ, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये और गेट होता मेरे पास अगर होता, तो इसमें मैं क्या करूँ, थोड़ा सा इसको इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। यहाँ पर जैसे 0 एक बबल लगा देता हूँ, बबल का मतलब नॉट लगा दिया। जब मैंने एक नोट अपनी तरफ से दे दिया तो एक और दे देता हूँ, 2 नोट लगा देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब भी एक्स वाई क्या होने लगेगा, एक्स यहाँ पे बार हुआ, फिर से बार का फिर बार हुआ, तो एक्स ही बन गया और एक्स प्लस वाई ही आएगा। अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मुझे मालूम है ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये वही वाला गेट है जो दिया हुआ है, ये वही वाला गेट है जो दिया हुआ है। तो ये पोर्शन तो वही वाला गेट लगा दिया। ये नॉट है, नॉट में बनाना जानता हूँ, नॉट ये इसको इससे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो नॉट मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया एक्स, और ये ग्राउंडेड कर दिया 0, और वाई, और यहाँ से वाई दे दिया, और ये ऐसे एक तो ये बनाई हुआ है। तो 2 ये वाले गेट हो गए जो गेट 3, ये भी गेट 3 है और ये भी गेट 3 है, ये दोनों गेट 3 है ना। इन दोनों गेट 3 को यूज करके हमने क्या बना दिया, x प्लस वाई बना दिया। ये गेट 3 है, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू जाएगा, देख लो x इज इक्वल टू जाएगा तो यहाँ पे x बार आ जाएगा, और जब x बार जाएगा इसमें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x बार इसमें जाएगा तो यहाँ तो x ही मिलेगा, और यहाँ से सीधा सीधा y आ गया। x बार यहाँ पे आ गया था, x बार का यहाँ पे ये और नॉट में चला गया तो x ही मिलेगा, और x प्लस वाई। तो नॉट गेट इसका यूज करके हमने ये गेट भी बना लिया। अब हम इसका यूज करके एंड गेट भी बना सकते हैं। एंड गेट कैसे बना देंगे, एंड गेट का एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से, सर्किट डायग्राम ऐसे होता है, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स डॉट वाई। अब मैं क्या करूँ, इसके आगे 2 बबल लगा दूँ, एक बबल ये लगा दिया और एक बबल ये लगा दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। एक्स वाई का बार, फिर एक्स वाई का बार, एक्स वाई आ जाएगा। तो अब एक बबल, इस वाले गेट को मैं जानता हूँ कोई नॉर गेट कैसे बन सकता है, एंड गेट को नॉर गेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये मैंने आपको वीडियो में बताया था। गूगल क्लासरूम में जाकर वीडियो फिर से चेक करो। किसी भी एंड नैंड गेट को, ये नैंड गेट है, इतना पोर्शन, ये पोर्शन नैंड गेट है। नैंड गेट को और गेट से कैसे बना सकते हैं, अगर हम और गेट के दोनों इनपुट को बबल से ऐड कर दें, मतलब नॉट गेट कर दें, तो ये नैंड गेट बन जाता है। तो ये नैंड गेट बन गया, तो ये नैंड गेट बन गया। और अब यहाँ पर जो बचा एक बबल, इस पर मैंने वो गेट 3 लगा दिया, उसका एक ग्राउंड कर दिया, है ना, ऐसे बन गया। तो ये एक्स वाई बन गया। ओके, तो एक बबल ये लगा दिया। अब इसमें से एक बबल तो मैं उसी को गेट को यूज कर सकता हूँ, गेट 3, और एक बबल का फिर से मैंने वही वाला नॉट गेट लगा दिया इस तरह का। यहाँ पर एक बबल का और नॉट गेट लगा दिया। यहाँ पर ये जो एक बबल है इसका मैंने एक नॉट गेट लगा दिया, वाई इसी के द्वारा बनाया गया बबल नॉट गेट इस तरह से होगा, एक इनपुट एक कर दिया। इस बबल का मैंने एक ये लगा दिया
और एक ऐसे ही छोड़ दिया, एक बबल ऐसे छोड़ दिया। ये तो गेट 3 है और ये गेट 3 है, तो ये बबल मैंने यूज किया हुआ है, इस बबल का यूज करके यहाँ पे मैंने यहाँ पे लगा दिया, तो ये इधर आ गया, तो ये मेरा बन गया। ये अब देख लो आप, एक्सप्रेशन एक्स से जाएगा यहाँ पर एक्स बार हो गया, यहाँ से बाई पे जाएगा, ये यहाँ से बाई से बाई बार हो गया, तो एक्स बार बाई बार निकलेगा यहाँ, सीधा सीधा एक्स बार बाई बार, एक्स बार बाई बार यहाँ पर जाएगा, तो कॉम्प्लीमेंट होगा एक्स बार वाई बार का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, तो ये एक्स बार वाई बार का कॉम्प्लीमेंट होगा, ये कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि यहाँ गेट नॉट लगा हुआ है, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। कॉम्प्लीमेंट होने के बाद जब इसको करोगे डी मॉर्गन थ्योरम से, तो ये एक्स डबल बार बाई डबल बार हो जाएगा, तो एक्स वाई बन जाएगा। तो ये मेरा कन्वर्ट हो गया इसमें। तो इस ये थर्ड वाले केस से मैं तीनों गेट बना सकता हूँ। तो थर्ड गेट इज द यूनिवर्सल गेट, एक्ट कर सकता है यूनिवर्सल गेट की तरह, बट यही पूछा है कि एक्ट कौन सा कर सकता है, यही पूछा है कि इम्प्लीमेंट करके हम अदर गेट को कौन सा, तो एन यूनिवर्सल गेट की तरह एक्ट कर सकता है। यूनिवर्सल गेट तुम्हारे नैंड और नॉर ही होते हैं, बट ये भी है यूनिवर्सल गेट की तरह एक्ट कर सकता है। तो ये क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर चेक करने के लिए हम फिर वहीं से चलते हैं क्यूज पर। तो क्यूज में हमारा आंसर क्या था इसका, ये आंसर नहीं था क्यूज में, हमारा आंसर ये था, ये आंसर था नहीं, आंसर हमारा सी पर आ रहा है, सी आंसर है ना, ए भी नहीं है बी भी नहीं है, सी, सी मतलब ये वाला आंसर है। गेट 3 इज द यूनिवर्सल गेट, और ये वाला गेट हमारा यूनिवर्सल, नॉन ऑफ द गेट शोन एज ए यूनिवर्सल गेट, ये वाला हम नहीं लगाएंगे, मोस्टली स्टूडेंट इसको लगाते हैं, ये नहीं लगाएंगे। इस गेट से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अदर गेट, तो यूनिवर्सल गेट की तरह एक्ट कर सकता है ये आपका ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा क्या हुआ, नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस क्विज टेस्ट का। In the circuit shown, diodes D1, D2 and D3 are ideal, and the inputs E1, E2 and E3 are 0 for logic 0, and logic and 10 volt for logic 1। इसमें दिया हुआ है कि अगर 0 होगा तो लॉजिक 0 हो जाएगा, और 10 वोल्ट होगा तो लॉजिक 1 हो जाएगा। What logic gate does the circuit represent? Does the circuit represent? तो ये हमने देखना है कौन सा सर्किट ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसके लिए हम फिर से वर्कशीट पर चलते हैं, वर्कशीट पर जाकर ये देखते हैं इसको। तो वर्कशीट पर हम यहाँ पर आ गए, लास्ट क्वेश्चन ये है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको 1 बाई 1 पहले मैं इसको 0 ले लेता हूँ, इनको 10 वोल्ट ले लेता हूँ, इसको 10 वोल्ट ले लेता हूँ। तो जैसे ही हम इसको 0 ले लेंगे, तो आप देखो ये मेरा डायोड लगा हुआ है, इधर एन का 0 वोल्ट हो गया, पी का यहाँ से अगर कोई चलेगा 10 वोल्ट तो यहाँ से कुछ कम हो जाएगा, 10 से थोड़ा कम हो जाएगा, बट इधर 0 है, इधर ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया इसको मैंने, ये ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया तो ये 0 है, और यहाँ पे लॉजिक हाई लगा दिया। तो इसका मतलब ये यहाँ से मेरा सर्किट बन गया, यहाँ से करंट आएगा तो ये फॉरवर्ड वाइज बन गया। तो अगर मैं इसको पहले वाले को 0 दे देता हूँ और E2 को 10 वोल्ट दे देता हूँ, इसको तो लॉजिक 1 हो गया। तो पहला डायोड फॉरवर्ड वाइज, 2 डायोड रिवर्स वाइज, तो इसका मतलब ये मेरा सर्किट कंप्लीट हो गया। करंट इधर से जाएगा इधर पहुंच जाएगा, तो करंट यहाँ से निकला यहाँ पहुंच गया, ये हमारा डिस्कनेक्शन हो गया, क्योंकि इधर का वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट और इधर का वोल्टेज कितना है 10 से थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि यहाँ ड्रॉप भी होगा, यहाँ 10 सप्लाई लगी हुई है, बट 10 से यहाँ पे थोड़ा कम हो जाएगा, ये कंज्यूम करेगा और यहाँ से कम मिलेगा, 10 से कम ही मिलेगा। तो इधर 10 है बट 0 से ज्यादा ही होगा, इधर इतना कम नहीं होगा कि 0 हो जाएगा, तो 0 से ज्यादा होगा और 10 से कम होगा, 10 से कम होगा तो ये रिवर्स वाइज में हो जाएंगे। अगर पी टाइप लेस हो जाता है और एन टाइप ग्रेटर हो जाता है रिवर्स वाइज, पी टाइप लेस हो जाता है ये रिवर्स वाइज हो जाएगा, ये दोनों ऑफ हो जाएंगे, ये ऑन हो जाएगा, तो ये यहाँ से चलेगा सीधा यहाँ पर आ जाएगा। अब जैसे ही यहाँ से यहाँ पर आया तो सारा वोल्टेज कहाँ पर पहुंच गया, 0 ग्राउंड पर पहुंच गया, तो आउटपुट आपका यहाँ पर लगा हुआ है, आउटपुट सीधा सीधा कहाँ पर जाएगा 0 पर चला जाएगा। तो करंट तो सर्किट में चलेगी, करंट चलेगी, बट वोल्टेज आउटपुट क्या मिलेगा 0 वोल्ट, तो ये 0 आ गया। फिर ऐसे ही अगर मैं इसको सिमिलरली मैं इसको 1 कर देता हूँ और इसको 0 पे कर देता हूँ और इसको 10 पे कर देता हूँ, तो अब ये ऑन हो जाएगा,
अब ऐसे ऑन हो जाएगा, तो फिर से वही बात हो जाएगी, ये दोनों ऑफ हो जाएंगे, क्योंकि इधर 0 वोल्ट हो गया, इधर हायर वोल्टेज, इधर लोअर वोल्टेज, तो फॉरवर्ड बाइस, और इधर हो गया हमारा हायर वोल्टेज, इधर लोअर वोल्टेज, तो इसका मतलब रिवर्स बाइस। और ये भी हायर वोल्टेज पर हो गया, ये लोअर वोल्टेज पर हो गया, एन इज हायर वोल्टेज, पी इज लोअर वोल्टेज, तो ये रिवर्स बाइस हो गया। तो अब इस केस में करंट तो इधर ऐसे ऐसे फ्लो हो जाएगा, बट जैसे करंट फ्लो होगा तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप क्या हुआ है, सीधा सीधा यहाँ पे आइडियल डायोड लगे हुए हैं, ये क्वेश्चन में बोला हुआ है इनकी ड्रॉपिंग 0 है, तो ये आइडियल डायोड लगे हुए हैं, यहाँ से सीधा सीधा वोल्टेज ड्रॉप हो गया 0, 0 यहाँ से चलेगा तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, इसका मतलब वोल्टेज 0 हो गया, करंट फ्लो होगी। सिमिलरली ये अब मैंने सपोज कर लो ऐसे ही बनता चला जाएगा, सभी में 0 0 आएगा, ठीक है। एक फाइनल आएगा हमारा 1 1 1, जब मैंने इनको भी, इसको भी 10 पे रख दिया और इसको भी 10 पे रख दिया और इसको भी 10 पे रख दिया, तीनों 10 पे रख दिए, तो तीनों डायोड रिवर्स वाइज हो जाएंगे, क्योंकि इधर हायर वोल्टेज है, पी टाइप, एन टाइप का हायर वोल्टेज, पी टाइप का लोअर वोल्टेज, क्योंकि इधर ड्रॉप होगा, तो पी टाइप का लोअर वोल्टेज और एन टाइप का हायर वोल्टेज, इसका मतलब रिवर्स वाइज हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे, करंट कोई नहीं जाएगी इसमें, करंट कोई नहीं जाएगी, आई की वैल्यू क्या होगी 0, जब आई की वैल्यू 0 हो गई तो आई आर क्या हो जाएगा 0, करंट नहीं फ्लो होगी, यहाँ पर करंट नहीं फ्लो होगी, इसका मतलब क्या हुआ, तो सारा जो वोल्टेज है यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, जब ये आपका रिवर्स वाइस हो गया, ये वाला रिवर्स वाइस हो गया, तो करंट इसमें क्या होगी 0, करंट इसमें क्या हो जाएगी 0, और जब करंट 0 हो गई, करंट फ्लो नहीं होगी, सारे रिवर्स वाइस में हो गए, जब इसको भी 10 कर दिया, इसको भी 10 कर दिया, सारों को 10 कर दिया, तो रिवर्स वाइस में हो गए, करंट 0 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कोई भी हमारा पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, सीधा वोल्टेज सीधा यहाँ पे पहुंच जाएगा, करंट ही नहीं चल रहा है तो V इक्वल टू आई आर होता है, आई 0 है तो 0 ड्रॉपिंग, यहाँ पे वोल्टेज पहुंच गया, तो इसका लॉजिक आ जाएगा 1, तो इसका मतलब क्या है, जब 3 1 है तब 1 है, और अगर 2 1 है तो ये जो ट्रुथ टेबल किसको सेटिस्फाई कर रही है, एंड गेट का क्या होता है, ऑल हाई देन हाई, एंड गेट की प्रॉपर्टी होती है ऑल हाई देन हाई, ऑल हाई, ऑल लॉजिक 1 देन लॉजिक 1, हाई देन हाई, तो ये एंड गेट की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, ऑल लॉजिक 1 देन 1, बट और गेट में क्या होता है, एनी 1 इज 1 देन 1, एनी 1 इज 1 देन 1, तो ये हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए यहाँ तक, तो ये हम आप उस पर चल के देखते हैं इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हम यहाँ पे देख लेते हैं, शेयर पे जाके ये क्यों शेयर करते हैं, इसका आंसर हो गया हमारा ये, तो इसमें ए आंसर भी नहीं है, इसका आंसर है सी, देखते आप देख रहे हो, इस पे सी पे लगाते ही ये आंसर है 3 इनपुट एंड गेट, तो ऑल आई, ये ऑल हाई होंगे तब हाई होगा, तब ये आप हो गया, तो थैंक यू, ये ऑल, दिस इज ऑल अबाउट द क्विज टेस्ट 1, एंड आगे मैं और भी टेस्ट डालूंगा, फिर उनके भी सोल्यूशन बताएंगे आपको, बाकी आप गूगल क्लासरूम में आप कनेक्ट हो सकते हो, गूगल क्लासरूम में सारी डिजिटल का क्लासेस जो मैंने लिए हैं वो सारे उसमें अवेलेबल हैं, वहाँ से आप सीख सकते हो डिजिटल को। ओके, थैंक यू।